This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. একটার পর একটা ছবি আসছে যেখানে একটার পর একটা ডিআই অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তুলকালাম পরিস্থিতি, যেমন মেদিনীপুরের ছবি আপনাদেরকে দেখাবো। এই মুহূর্তে পশ্চিম মেদিনীপুরে একেবারে শহরের ছবি দেখাচ্ছি। কিছুক্ষণ আগে যে প্রতীকী প্রতিবাদ আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, কাঁধে করে এক প্রতীকী মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং বলা হচ্ছিল ওই প্রতীকী মৃতদেহ আসলে হচ্ছে এসএসসি মৃতদেহ। সেই যে প্রতীকী মৃতদেহ তা জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, এবার আগুন দিয়ে দেওয়া হলো তাতে। দেবব্রত এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন আমাদের রিপোর্টার। দেবব্রত, এখন কি পরিস্থিতি সেখানকার? দেখো, প্রথমেই বলে রাখি, আমি আমার এই ছবিটাই দেখাতে বলবো আমার সহকর্মীকে, যে ইতিমধ্যে কিন্তু ডিআই অফিস ছাড়িয়ে মেদিনীপুর শহরের রাজপথে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে কিন্তু প্রতীকী যে মৃতদেহ তৈরি করে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং যে মৃতদেহ কাঁধে করে শবদেহের মতো নিয়ে এসে ঘোরা হলো মেদিনীপুর শহরে, এবং সেটা ইতিমধ্যে জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে মেন রাস্তার উপরে কিন্তু পথবরোধ শুরু হয়েছে। আমার সহকর্মীকে দেখাতে বলবো যে মানববন্ধনের মধ্য দিয়েই কিন্তু পথবরোধ চলছে। এর আগেও যেমন মানববন্ধনের মাধ্যমে তারা পথবরোধ ছিল এবং সেই পথবরোধের মাধ্যমেই কিন্তু রাজ্য সরকারের কাছে বারবার তারা বার্তা দিতে চেয়েছে এবং রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করেছে যোগ্যদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া, এবং এই দাবিটাকেই সামনে রেখে কিন্তু আজকেও পথবরোধ হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে। ইতিমধ্যেই সেই অবরোধ আন্দোলন চলছে এবং সেই আন্দোলন থেকে কিন্তু ইতিমধ্যে আবার পথবরোধ থেকে আবার ফের কিন্তু ডিআই অফিসের দিকে সেই আন্দোলনের মুখ অভিমুখ ঘুরে যাচ্ছে। আন্দোলনকারীরা তারা কিন্তু ইতিমধ্যে আবার ফের পথবরোধ সেরে নিয়ে তারা কিন্তু ডিআই অফিসের দিকে যাচ্ছে। একটাই দাবি, মূলত যোগ্যদের চাকরিতে ফেরত দেওয়া। এই দাবিটাকে সামনে রেখেই কিন্তু তারা আন্দোলন করে যাচ্ছে। প্রতীকী মৃতদেহ নিয়ে এসে আপনারা শবদেহ বা মৃতদেহে আগুন দিলেন, এর পরবর্তী পদক্ষেপ কি? আমাদের যেটা আজকের মেন কর্মসূচি সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ডিআই অফিসে আজকে আমাদের তালা লাগানো কর্মসূচি আছে। বুঝতে পারছি, তুমি নজর রাখো দেবব্রত, কারণ এর মধ্যেই আমাদেরকে কলকাতার ছবি আমাদের দর্শকদের দেখাতে হচ্ছে। তার কারণ কসবা ডিআই অফিসের অভিযানে চাকরি হারাতে সেই ছবিটা আমাদের রিপোর্টার সুজয় দেখাবে আমাদের এই মুহূর্তে সরাসরি। সুজয়, ডাইরেক্ট ছবি, সরাসরি ছবি। সুজয়, এই মুহূর্তে কি চলছে সেখানে? বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে বিজন সেতু হয়ে যে মিছিল, সেটা কি শুরু হলো? এই মুহূর্তে ছবিটা কি? লিমা, সরাসরি তোমাকে বিজন সেতু ছবিটা দেখাচ্ছি, যেখানে চাকরিহারারা এই মুহূর্তে কসবা যে ডিআই অফিস, সেই ডিআই অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন এবং সেখানে তাদের রাজ্য জুড়ে আজকে যে কর্মসূচির ঘোষণা করা হচ্ছে সেই কর্মসূচি পালন করবেন, অর্থাৎ ডিআই অফিসে তালা দেবেন। আমি সরাসরি কথা বলি একজনের সঙ্গে। আজকে আপনাদের কর্মসূচিটা ঠিক কী রয়েছে? আজকে আমাদের কর্মসূচি আছে যে আমরা যোগ্য শিক্ষকরা যে কলকাতা ডিআই অফিস কসবাতে অবস্থিত, সেই ডিআই অফিস সারা পশ্চিমবাংলা জুড়েই ডিআই অফিসগুলোতে তালা ঝোলানো কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আমরা আজকে কলকাতা ডিআই আমরা এখানে সমবেত হচ্ছি। আমরা মিছিল করে ওখানে যাব, ওখানে ডিআই অফিসের গেটে আমরা তালা লাগাবো। এই শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া দরকার, এই শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া দরকার। আরেকটা প্রশ্ন, আমরা বিহারের দুজন এমপি এবং রাহুল গান্ধী প্রেসিডেন্টকে আমাদের হয়ে লেটার লিখেছেন যে যোগ্যদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। আমাদের পশ্চিমবাংলার 42 জন সাংসদ কোথায়? তারা কবে আমাদের পাশে দাঁড়াবে? ওনাদের চুরির জন্যই আমাদের পরিস্থিতি, আজ সরকারের চুরির জন্য আমাদের। আচ্ছা, আপনারা কি মুখ্যমন্ত্রী তো বলেছিলেন যে পরের দিন থেকে স্কুলে যেতে, আপনারা কি স্কুলে গিয়েছিলেন? না, আমরা স্কুলে যাব না, কারণ আমরা ভলেন্টিয়ার শিক্ষক হিসাবে পরীক্ষা দিইনি। আমরা আমাদের যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়েছি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হিসাবে আমরা আমাদের যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়েছিলাম। আজকে বলা হচ্ছে ভলেন্টিয়ার শিক্ষক হিসাবে আমাদেরকে স্কুলে যেতে হবে। মুকুটহীন রাজা মানায় না, সিংহাসনহীন রাজা মানায় না, ডেজিগনেশনহীন পদ আমরা মেনে নেবো না। কোনোভাবে ভলেন্টিয়ারি শিক্ষাকর্মী বা শিক্ষক হিসাবে আমরা পরীক্ষা দিইনি। মুখ্যমন্ত্রী তো বলেছেন 2 মাসের মধ্যে সমাধান করবে। 2 মাসের মধ্যে সমাধান করবে উনি বলেননি, উনি বলছে 2 মাসের টাকা পুষিয়ে দেবো। এই পুষিয়ে দেওয়াতে আমরা নেই। বলুন। মুখ্যমন্ত্রী পুষিয়ে দেওয়া ভাষাটা অত্যন্ত অরুচিকর। মুখ্যমন্ত্রী ভলেন্টিয়ারি সার্ভিসের কথা বলেছে, এটা মোটেও ঠিক নয়। সুজয়, সঙ্গে থাকো, মালদায় নজর রাখি একটু, সঙ্গে থাকো। সুব্রতোষ, বলো প্লিজ।
ডিনাই করবেন না। এবং তার সবথেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ তারা বলছেন নেতাজি ইন্ডোরে যেটা হয়েছে সেটা মূলত তৃণমূলের মিটিং, মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূলের লোকদেরকে নিয়ে মিটিং করেছেন। কি বলছেন আপনি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম? নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা আমাদের কাছে ভাবতা মনে হয়েছে। কেন? কারণ তিনি এর আগে বহুজনকে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি। ওটা কি তৃণমূলের মিটিং? দেখুন দেখুন ওখানে 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 আপনি বিচার করুন সেটা। যেখানে যাওয়ার কথা ছিল শুধুমাত্র যোগ্য ডিপ্রাইভড টিচার যারা, তাহলে সেখানে ওই যে বলছেন শিক্ষা শ্রেণীর লোকজন গেল কি করে তারা? তাহলে তো এই প্রশ্নটা উঠবেই, এই প্রশ্ন উঠবেই। তাহলে সেটা কি তার কোনো দলের মিটিং ছিল? হ্যাঁ, মানে সাজানো সাজানো, একদম সাজানো। হ্যাঁ, এবং সাজানো, এবং আমরা সেই আশ্বাসে ভুলছি না। এবং সেখানে সেই মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে আমি আগে যোগ্যদের কথা ভাববো, পরে অযোগ্যদের কথা ভাববো। এই প্রশ্ন আমাদের, অযোগ্যদের কথা কেন ভাববে? আজ অযোগ্যদের জন্যই আজকে আমরা চাকরি হারা। সেখানে উনি এই কথা কেন বলেন যে অযোগ্যদের কথা আমরা পরে ভাববো? আমরা মুখ্যমন্ত্রী এই ধাপ্পাতে বিশ্বাস করছি না। পটামং হবই, যা কিছু মঙ্গলময় সব কিছু আপনাদের হোক। मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देने चाहूंगी कि बंगाल में मैंने देखा जब सामने में हम जा रहा था कि आप लोगों ने सबको इनवाइट किया है। यही जैन धर्म का सबसे बड़ा परंपरा है, डिवाइड एंड रूल के लिए नहीं। अगर आप यूनिटी नहीं चाहते हैं तो वाई माई बुद्धिस्ट प्रीस्ट इज देयर, वाई माई सिख फ्रेंड्स आर देयर, वाई माई माइनॉरिटी फ्रेंड्स आर देयर, वाई माई पारसी फ्रेंड्स आर देयर, वाई माई हिंदू फ्रेंड्स आर देयर, वाई माई जैन फ्रेंड्स आर देयर। हिंदू, बौद्ध, सिखो, जैन, पारसी को, मुसलमान, क्रिश्चियनी, I have seen the father also. And I have seen my sisters and brothers all. This is a unique combination. That is India. यही हमारा हिंदुस्तान है जिसको परंपरा है सब राज्य में एक एक लैंग्वेज होता है, रीजनल लैंग्वेज। एक खाना होता है, एक वेशभूषा होता है, एक परंपरा होता है, एक ट्रेडिशन होता है। लेकिन हम लोग हॉट ट्रेडिशन को मानते हैं, सॉफ्ट ट्रेडिशन को हम लोग मानते हैं। इसी के लिए मैं जब परेशनाथ मंदिर में गया था तो वो लोगों ने मेरे को विनती किया था कि हमारा इधर में बहुत सारे पानी जम जाता है, हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं 7 दिन का अंदर उसको कर दिया था। ऐसे हमारा इधर में जितना भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियनी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जाहिर थान हो, चाहे मजेर थान हो, चाहे पंचानन राजवंशी हो, चाहे कमतापुरी हो, चाहे तपोसिली हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहनों हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे किसान हो, चाहे संगीत प्रेमी हो, चाहे फिल्म वर्ल्ड हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हो, संस्कृति हो, सबको लिए हम लोग को प्रेम और प्रेरणा हम लोगों ने छोटा से सीखा है। आपने जब कहते हैं दिगंबर जैन, सितंबर जैन, हमारा पुस्तक में था, ये आज का नया बात नहीं है। हम लोग छोटा में जब स्टडी किया था तब से हम लोगों को मालूम है, ये कोई नया बात नहीं है। हम लोग 3-4 में सीखा। हम लोग को अगर बंगाल हमारा फर्स्ट लैंग्वेज था तो हिंदी हमारा सेकेंड लैंग्वेज था। हम संस्कृत भी सीखा क्लास 8 तक। इसी के लिए संस्कृत भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा पता होता है। हम लोग देश भर का हर भाषा समझते हैं। मैं पंजाबी भी समझती हूँ, मैं गुजराती भी समझती हूँ, मराठी भी समझती हूँ, राजस्थानी भी समझती हूँ, भोजपुरी भी समझती हूँ, आसामी भी समझती हूँ, नागालैंड का जो नागामीज है वो भी समझती हूँ, असम को लैंग्वेज भी समझती हूँ। खाली
साउथ इंडियन का लैंग्वेज हमको थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन तब भी कन्नड़ा का थोड़ा थोड़ा वर्ड और मलयाली का थोड़ा थोड़ा वर्ड, जो संस्कृत वर्ड है उसका साथ बंगाल का संबंध है, परंपरा है। जैसे एक वर्ड है धन्नो, धन धन्नो, ये सब वर्ड कन्नड़ा में है। संस्कृत वर्ड नमस्कारम, कोई कहता है नमस्कार, कोई कहता है नमस्कारिंडा, कोई कहते हैं सत श्री अकाल जी, कोई कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, कोई कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कहते हैं ओम महादेवो, ओम महादेवं महत्तानं महाजोगी महेश्वरम महापापो हरं देवं मकराय नमो नमो, नमस्ते ब्राह्मण्यो देवाय ग ब्राह्मण्यो हिताय च जगद्धीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। जैसे हमारा माँ दुर्गा है वैसा माँ काली का एक ग्रुप है, ऐसे संतोषी माता का एक ग्रुप होता है, ऐसा वैष्णु माता का एक ग्रुप होता है, ऐसे विष्णु महेश्वर का एक ग्रुप होता है, तो गायत्री माता को भी एक ग्रुप होता है। ये रूप हर रूप हम लोगों को लिए एक परंपरा होता है। कोई खिलाफ में कहते हैं, हमको कहते हैं आप क्यों हर धर्म का जगह में जाता है, हम कहा है हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इसी के लिए और हमारा इधर में सब धर्म होता है, हर धर्म, हर परंपरा, हर जाति, हर कास्ट, हर क्रीड, every caste, every creed, every religions, all they pray for them, all they pray for world, all they pray for humanity, and we love them. किसी को सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है, ये तो बराबर है, इसको चिंता करने के क्या है। जो बंगाली लोग बंगला गाना गाते हैं, हिंदी लोग हिंदी गाना गाते हैं, गुजराती लोग डंडी भी करते हैं, हम भी उसका साथ डंडी करते हैं, राजस्थानी भी डंडी करते हैं, होली भी करते हैं, हम उसका साथ में भी जाते हैं। तो अगर हम माँ दुर्गा पूजा में जाते हैं, काली पूजा में जाते हैं, डंडी भी करते हैं, दुर्गा पूजा में भी जाते हैं, तो हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हम बड़ा दिन में भी जाते हैं, हम गिरजा में जब भी जाते हैं, हम बुद्धिस्ट लोगों को टेम्पल में भी बहुत सारे गए, मैं जैन जी का टेम्पल में भी गया, गुरु रविदास जी का टेम्पल में भी गया, क्यों नहीं जाएगा। हम राजस्थान में आजमेर शरीफ जैसे गया, हम पुष्कर शरीफ में जाके पुष्कर में बम्बा विष्णु महेश्वर मंदिर में भी मैं दर्शन करके आया है। और मेरा को प्लान था आजमेर से पुष्कर रेल लाइन करने का, इसी के लिए कि हम जुड़ दिया था। ये यूनिटी कहते हैं। जितना रेल स्टेशन हमारा टाइम में जिधर में जो जो धर्म स्थान है अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है, उसका आदल में हमने बनाया था। आप अगर दक्षिणेश्वर मंदिर जाओगे तो उसको पहला देखोगे कंप्यूटर रिजर्वेशन सेंटर है, देखने के में लगता है वही छोटा दक्षिणेश्वर है, क्यों इसका तड़ा कर दिया था। हर हमारा इधर में बहुत सारे देव देवी का मंदिर है, आप लोगों को आमंत्रण है। फिर हमारा माँ काली मंदिर में 7 o'clock काली मंदिर का स्काई वॉक बना रहा है, हम जैसा दक्षिणेश्वर में बना दिया, पूरा नया ढंग से हम काली मंदिर को बनाया, उसको उद्बोधन होगा। हमारा मेयर फिराद हकीम है, वो भी रहेगा, आप लोग भी आइए। हम जगन्नाथ टेम्पल बना रहे हैं दीघा में, जो पुरी का हाइट, पुरी का अदल में पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसका सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है। हम उसको पहले दिन पुरी का जो दैत्यपति है पूजा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट दिन से इस्कॉन को दिया है, इस्कॉन उसको संभालेंगे हर दिन के लिए, कि उसको मायापुर में हम 700 एकड़ लैंड दिया है, मायापुर में इस्कॉन को पूरा सिटी बनाने के लिए, धर्मस्थान बनाने के लिए। ऐसा हम तारापीठ मंदिर बना दिया, कंकाली ताला बना दिया, सतीपीठ जो है। ऐसे हम बहुत सारे तालोकेश्वर से लेके
नकुलेश्वर मंदिर तक, कालीघाट से लेकर दक्षिणेश्वर तक। आप बताइए, हिंदू धर्म में बंगाल में जो रामकृष्ण परमहंसदेव, स्वामी विवेकानंद ने जो बात शिकागो में जाके कहा है, आपको पता था? उसको घर एक दिन बेच रहा था, कोई प्रमोटर ने उसको घर किन रहा था, खरीद रहा था। जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा एक जागृत रूप है। मेरे को पास रात 12 बजे फोन आया तो नेक्स्ट दिन हम उसको हमारा गवर्नमेंट का ओर से रिक्विजिशन करके दे दिया मंदिर, बेलूर रामकृष्ण मिशन को, जो स्वामी विवेकानंद का जो रहने का जो घर है। दक्षिणेश्वर मंदिर को सब बना दिया। अभी भी जो दक्षिण स्वामी विवेकानंद जी का घर पे लाइट एंड साउंड जो अच्छा से चल रहा है, वो पूरा खर्चा हम देता है गवर्नमेंट का ओर से। बेलूर मठ भी किया है, बहुत सारे डेवलपमेंट जैसे हर जगह पे किया है। आप घूम के बंगाल में देखिए, पहले क्या था और आज क्या है। हमारा उद्देश्य यह है कि बांटना नहीं, जोड़ना चाहिए। बांटने से देश बढ़ जाएगा, कमजोरी पड़ जाएगा, इकोनॉमी कमजोरी पड़ जाएगा, और यूनाइटेड रहने से देश आगे बढ़ेगा। हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का हक किसी का नहीं है, वैसे और किसी का प्रॉपर्टी लेने का हक हमारा भी नहीं है। सबको जीने दो, सब जियो शांति का साथ, और सबको जीने दो। ये हमारा पॉलिसी है। जो माने माने, जो नहीं माने नहीं माने। कोई कोई तो खूब बताते हैं और बंगाल को डिफेम करते हैं, कहता है बंगाल में हम हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देता है। कौन देता है? बोलो, कौन प्रोग्राम में आप लोगों को रोक दिया? हर समाज को हम पूछेंगे कौन प्रोग्राम को हम रुका है। Even I must give the credit to my minority community also. They have celebrated all the Hindus program also. This is Bengal. I am proud to say that. वो लोग जब ईद करते हैं, इफ्तार करते हैं, हमको बुलाते हैं, तो बुलाने से नहीं जाएंगे। अगर हमको पूजा में जाते हैं तो उसको उधर में हम नहीं जाएंगे, तब आप लोग गाली देते हैं। हम ज्वाइन का प्रोग्राम में आप हमको मना करेंगे तो हम सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, हम आएंगे। जितना दिन जिंदा रहेंगे हम आएंगे। आप भी सोचो कि आप हमारा घर में है, ये आपका घर है, ये आपका घर है। जिंदगी में पूरा जिंदगी हम लोग जब रहते नहीं है, जिंदगी बहुत छोटा चीज है। जितना दिन जिंदगी में हम लोग जिंदा है, तो जिंदा रहने से ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिसमें प्यार है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें कामयाबी है, जिसमें सबको लिए दर्द है, जिसको सबके लिए प्यार है। और ये प्यार का साथ आपको जैन धर्म का रिलेशन बहुत अच्छा से जुड़ा हुआ है। इसी के लिए आज का दिन में मैं आप लोगों के अनुसार विनती करने चाहेंगे कि आप देश को जोड़ो। आप यू मस्ट लीड द कंट्री to unite the country and give the message to all over the world. Let us think for unity. Let us speak for unity. Let us work for unity. Let us work with love. Let us work with affection. Let us work with peace. इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। मानुष तो वही होता है जिसका पास, हमका पास फ्लेश, हमारा तो ब्लड है, हमारा पास फ्लेश है, हम एक रक्त मांस का, हमारा पास खून है, हमारा पास जो हम एक शारीरिक जो है मानविक মানুষ है, ওই মানুষ আসল মানুষ হয় যে সবাইকে ভালোবাসে।
যারা সবাইকে ভালোবাসে তাদের সবাই ভালোবাসে। मेरे को एक चीज पता है, कोई अगर कोई पाप काम भी करे उसका बाद जैन धर्म का कोई आदमी हो तो उन्होंने कहता है आपको माफी कर दीजिए एक दिन में, कि वो माफी मांगते हैं कि अगर हमारा कोई गलती हो गया तो माफी चाहती हूँ। मैं ऐसा 2-3 को पहचानता हूँ जो हमारा साथ एक बहुत बड़ा इधर का नहीं है, बाहर का बहुत जास्ती किया है, लेकिन उसका बाद चुनाव का टाइम में, लेकिन उसका बाद कहा है कि इफ आई एम रॉन्ग प्लीज फॉरगेट। सो दिस ए गुड लेसन, दिस लेसन मस्ट गो टू ईच एंड एवरीबॉडी। मैंने गुजराती समाज को लक्ष्मी मंदिर में किया, मैंने बोला आपको कुछ काम करना था हम कर देते हैं, लेकिन आपने करने नहीं दिया। आपका है इसी के लिए सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमने ऑफर किया था, ये बात नहीं है हमने नहीं किया था। हमका पास में जो भी जब भी कहते हैं तब हम जाको कहते हैं, हम गेस्ट हाउस के लिए भी ऑफर किया था। ये बात आपको याद के लिए मैंने कहा है। जब परेशनाथ मंदिर में गया तब भी मैंने कहा बोलो क्या कुछ हमारा लेके कुछ आदेश है, तो वो लोग जो कहा था मैंने कर दिया। पंजाबी लोगों ने मेरे को कहा हमारा गुरुद्वार के लिए अच्छा से गेट बना दीजिए, वो भी बन रहा है। भवानीपुर का उधर में आप देखो पीजी हॉस्पिटल का बगल में गुरुद्वारा, जो हरीश मुखर्जी रोड में जो गुरुद्वारा है उसका बगल में। ऐसे मस्जिद में भी जो मेरे को बताया, मैं भी फलाना मस्जिद का उधर में गेट बना दिया। ऐसे बहुत सारी चीज है जो हम लोगों ने किया है। इंडस्ट्री का बात तो आप लोगों ने कहा, ओनली आई विल टेक 2 मिनट्स। इंडस्ट्री में एमएसएमई में वी आर नंबर 1 इन इंडिया, मीन्स स्मॉल स्केल एंड मीडियम। और बिग इंडस्ट्री में वी आर 1 आउट ऑफ 3 इन इंडिया। स्किल सेक्टर में वी आर नंबर 1 इन इंडिया। हमारा रुपया का बहुत असर है, जो हमारा मिलना चाहिए जीएसटी लेने का बाद हमको नहीं मिला, तब भी हम जो काम गरीबों को लिए करना, आप लोग भी गरीब को प्यार करते हैं, कभी कभी कुछ आपको सुख बांटते हैं, हर धर्म में किया जाता है। इसी के लिए हमारा ओर से जितना भी संभव, हमारा 89 और 94 ऐसा कुछ होगा, हमारा सोशल स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम हम करेंगे, पूरा करेंगे। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन आप देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। इतिहास में पहले बांग्ला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसका बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग, दैट यू शुड असेंबल and lodge a movement. I will appeal to all of you.
not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. If we are together, then we can win everything. We can conquer the world. Let us give our message to the world. Yes, the economic turmoil is going on throughout the world. Our country also economic situation is not good. But let us fight the battle together. Let us fight. क्या हमको जल्दी करना है ना? नहीं हम लोग हो गया हमारा. Let us fight together so that we can conquer the world. We are proud of our country. We are proud of our state. We are proud of the humanity. We are proud of all religions, all caste, all creed together. Peace means together. Love means together. Happiness means together. Unity means together. Faith means together. So let us stay together. And भरोसा रखिए कि हम आपका खिलाफ में नहीं हो, हम आपका साथ में हो और आपका कम्युनिटी आगे बढ़े, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, हर जगह में आप भी काम पे आगे बढ़े। हम आपका साथ पहले भी थे, अभी भी है और पूरा रहेगा। हमारा दिल आपको पास छोड़ के जाता है इसी के लिए कि आप लोग ये मैसेज दीजिए, वी हैव टू स्टे टुगेदर। दिस इज द सबसे बड़ा मैसेज आज ये नमोकार मंत्रों में, मंत्र दिवस में सबसे बड़ा मैसेज यही है कि महावीर जयंती जो काल उसका जन्मदिन है 24 जो गुरु जी है महावीर जैन जी का, हाँ?